Okay, we'll start with your blessings of all the devotees. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shlakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guru. Second chapter, Shlok 31. संस्कृत पढ़ेंगे. स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धश्रेयोऽन्यात् धर्म्याद् अद्धियुच्यश्रेणयात् क्षत्रियस्य न विद्यते. क्षत्रियस्य न विद्यते। ओके, तो अब हम ट्रांसलेशन करेंगे. कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I'll read. हाँ, आप पढ़ो. नहीं आप Yes. go ahead माता जी please. I'll read after you. Okay, I'll read. Translation. Considering your specific duty as Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. And so there is no need for hesitation. Purport. Out of the 4 orders of social administration, the second order for the matter of good administration is called Kshatriya. Shat means hurt. One who gives protection from harm is called Kshatriya. Trayate, to give protection. The Kshatriyas are trained for killing in the forest. A Kshatriya would go into the forest and challenge a tiger face to face and fight with the tiger with his sword. When the tiger was killed, it would be offered the royal order of cremation. This system has been followed up even up to the present day by the Kshatriya kings of Jaipur state. The Kshatriyas are specially trained for challenging and killing because religious violence is sometimes a necessary factor. Therefore, Kshatriyas are never meant for accepting directly the order of sannyasa or renunciation. Non-violence in politics may be diplomacy, but it is never a factor or principle. In the religious law books, it is stated, Ahaveshu mithonyonyam jigam santo mahikshita yudham mana param saktya swargam yanti aparan mukha. हरि बोल. प्रभु जी आप थोड़ा सा स्क्रीन डाउन करेंगे अतुल भैया. यजनेषु पश्वा ब्राह्मण हन्यन्ते सतातं द्विजय संस्कृता किला मंत्रैश्च तेपि स्वर्गम अपप्नुवन्. In the battlefield, a king or Kshatriya, while fighting another king envious of him, is eligible for achieving the heavenly planets after death, as the Brahmanas also attain the heavenly planets by sacrificing animals in the sacrificial fire. Therefore, killing on the battlefield on religious principles and killing animals in the sacrificial fire are not at all considered to be the acts of violence, because everyone is benefited by the religious principles involved. The animal sacrificed gets a human life immediately without undergoing the gradual evolutionary process from one form to another, and the Kshatriyas killed on the battlefield also attain the heavenly planets, as do the Brahmanas who attain them by offering sacrifice. ओके, तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे. ओके, तो अभी ये क्या चल रहा है यहाँ पे. तो जैसे आप लोगों को पता है, कृष्णा अर्जुन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये स्थिति में जिस अर्जुन जिस स्थिति में है उसको कैसे देखा जाए.
जैसे एक पर्सपेक्टिव था अर्जुन का जिससे वो देख रहा था, पहले पूरे चैप्टर में उसने इलैबोरेट किया, अब दूसरा पर्सपेक्टिव कृष्णा दे रहे हैं। और जिस तरह का पर्सपेक्टिव होता है हमारा सिचुएशन पे, उस तरह की हमारी व्यू पॉइंट बन जाता है, उसी तरह से हमारा माइंडसेट हो जाता है कि हमें कैसे फेस करना है। सेम सिमिलर सिचुएशन भी क्यों ना हो, लेकिन जैसा माइंडसेट होगा, जैसा पर्सपेक्टिव होगा, हम वैसे ही उससे रेसिप्रोकेट करेंगे। फैक्ट्स जो होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, मोर देन जस्ट फैक्ट्स। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन है वो कृष्णा अर्जुन से शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमने पहले डिस्कस किया पूरे सेकंड चैप्टर में अभी तक जितना हमने पढ़ा है, उसके बाद इस पॉइंट पे आए हैं कि भाई आप अपनी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो धर्म है, उसको फॉलो करते हुए एक क्षत्रिय की जो ड्यूटी है उस लेवल पे आके आप कार्य करो। और उस लेवल पे यू शुड नो दैट देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट। आपके लिए और कुछ भी इससे बेटर नहीं है कि आप धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो, और इसमें तुम्हें हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ बताया पर्पट में एक श्लोक का कोट करके प्रभुपाद ने कि देखो हर एक के लिए जो धर्म है वो उसके सिचुएशन के हिसाब से होता है, जो भी आपकी समाज में जो आपका स्थिति है उस हिसाब से होता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के लिए जो धर्म और उसके लिए जो ऑक्यूपेशन है और जो ड्यूटीज हैं उनका जो रोल है सोसाइटी में वो अलग है। तो क्षत्रिय के लिए क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जो धर्म है वो ये है कि वो वॉयलेंस से घबराए मत। और वॉयलेंस किस लिए होनी चाहिए? धर्म की स्थापना करने के लिए होनी चाहिए। जो धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं उनके अगेंस्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि कैसे क्षत्रियों की ट्रेनिंग होती है। अब आजकल अगर आप देखोगे तो युद्ध अभ्यास करने में कितनी ट्रेनिंग करते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज, इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सब कितने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं सिर्फ युद्ध अभ्यास करने में, नए नए मिसाइल और ये वेपन्स, पूरा वॉर का सीन क्रिएट करने के लिए। तो पहले क्षत्रियों के टाइम पे क्या होता था, वो उनके टाइम पे क्या होता था कि एक डेंजरस सिचुएशन में उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता था, जंगल में, वो जंगल में जाते थे और सिंगल हैंडेडली उनका होता था कि बहुत खतरनाक खतरनाक जानवरों के बीच में होंगे वो, और वहां से वो कैसे युद्ध करके बाहर आते हैं, कैसे उसमें युद्ध में हराते हैं उन जानवरों। और जानवर भी जो होते हैं वो समझदार होते थे, वो ऐसे एरियाज में नहीं जाते थे जहाँ पे ऋषि मुनि वगैरह हैं। और क्षत्रिय उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ऋषि मुनियों की प्रोटेक्शन, उनके चारों तरफ रेडियस में कोई खतरनाक होना है उसके लिए वो वहां जाके हंटिंग करते थे और ऐसे चैलेंज करते थे। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ बताया कि क्षत्रियों के लिए ये जरूरी है। और ब्राह्मणों के लिए यहाँ पे जो बात बोली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, कि वेदों में भी ऐसी चीजों का वर्णन है जहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइस हो सकता है। जैसे कई कई तरह के यज्ञ हैं जिसके अंदर कई बारी एनिमल सैक्रिफाइस होता है। अब ये यज्ञ जो है ये कलयुग में वर्जित है। तो ऐसा श्लोक आता है भगवत क्या कहते हैं शास्त्रों में कि कुछ कुछ चीजें वर्जित हैं कलयुग में। उसमें से एक ये है कि जानवरों को सैक्रिफाइस करने वाले यज्ञ जो हैं, जो जो अलग अलग तरीके लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या कहते हैं वैदिक अम्ब्रेला, जो पूरे वैदिक कल्चर है, जो पूरा का पूरा वैदिक स्क्रिप्चर्स है उनका शरण लेते हैं। और वैदिक स्क्रिप्चर्स का शरण लेने के लिए अलग अलग मोड्स में हो सकते हैं लोग, जो सतोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं और तमोगुण में होते हैं। उनके लिए अलग अलग प्रेस्क्रिप्शंस और रिकमेंडेशंस होती हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। क्योंकि जैसे मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि जो एक इंस्ट्रक्शन आप दोगे किसी व्यक्ति को जो स्मोकिंग कर रहा है, और कोई एक दूसरी इंस्ट्रक्शन आप दोगे जिसको जो स्मोकिंग नहीं कर रहा, वो अलग होगी। एक डॉक्टर के पास जाता है एक व्यक्ति, उसको सांस की बीमारी है और वो स्मोकिंग करता है, तो उसको डॉक्टर कहेगा कि भाई कितनी स्मोकिंग करते हो? कहता है मैं तो 20 सिगरेट पीता हूँ रोज। वो कहते हैं इसको छोड़ना है, धीरे धीरे कम करो आप,
आप कल से 10 सिगरेट पियो, लेकिन जो पीता नहीं है सिगरेट उसको तो नहीं कहेगा कि आप 10 सिगरेट पियो। अरे भाई मैं तो पीता नहीं, नहीं आप भी, सबको, हम सबको एक जैसे ट्रीट करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, आप भी पियो 10 सिगरेट, आप भी। तो वो जो बेचारा सही व्यक्ति आया था वो बीमार और हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हर एक के हिसाब से उसको रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ जी आपने, इसलिए आपको सांस की बीमारी हो रही है क्योंकि आपको इन्फेक्शन है, आप ये दवाई लो। आपको इसलिए सांस की बीमारी हो रही है क्योंकि आप स्मोकिंग करते हो, आप स्मोकिंग छोड़ो धीरे धीरे, कल से 10, फिर 5, फिर 2, ऐसे कर। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। उसी तरीके से जो ब्राह्मण है उनके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है, क्षत्रियों के लिए अलग इंस्ट्रक्शन। तो वेदों में क्योंकि कई तरीके के लोग आते हैं जो वेदों का शेल्टर लेने के लिए, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको मांस खाने में बड़ी रुचि होती है। उनको ये है कि हाँ भाई हम वेदों को तो मान लेंगे लेकिन हमें मांस जरूर खाना है, नॉनवेज जरूर खाना है। तो उनके लिए कहते हैं कि अच्छा आप, वेदों के अंदर भी कई सेक्शंस हैं जिसमें ये बताया गया कि कैसे आप इस तरीके से आप खा सकते हो मांस जिससे आपको कम उसके नेगेटिव कर्मा लगेगा। तो वो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए, जो सतोगुण और रजोगुण से भी में नहीं फिट होते, वो तमोगुण में फिट होते, तामसिक प्रवृत्ति, तो उनके लिए वो शास्त्र में बताया गया। उसके अलावा तो वो अगर फॉलो करके कोई मांस खाता है तो उसको इतना ज्यादा कर्मा लगने की जगह थोड़ा सा कम लगेगा, तो वो उसके लिए बेटर है। लेकिन जो यहाँ पे कई चीजें, कई ऐसे यज्ञ हैं जिसमें जानवरों की किलिंग के बारे में बोला गया है कि जानवर मर जाते हैं। वो बड़े अलग अलग तरीके के यज्ञ होते थे। कुछ यज्ञ ऐसे होते थे जो, जिसमें आप मंत्र का उच्चारण करते थे ब्राह्मण, और मंत्रों के उच्चारण से जो है वो जानवर जो है उसकी मृत्यु हो जाती थी। और उसको मृत्यु नहीं कहते, वो एक्चुअली उसको बहुत, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। और ऐसे यज्ञ अभी वर्जित हो गए क्योंकि ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है जिनके अंदर ऐसे स्किल्स हो, जिनके अंदर नॉलेज हो, जिनके अंदर प्योरिटी हो ऐसे यज्ञ करने के लिए। तो इसलिए आजकल की सोसाइटी में चेंजेस आ गए, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है ये तब के हिसाब से दिया हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है। और क्षत्रिय के लिए फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कृष्ण अभी अर्जुन को बता रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं उसको कि भाई अगर तुम ये सब चीजें करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ग्लोरियस है, और ऐसी युद्ध में अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो उसके बाद तुमको कोई भी आउटकम हो, चाहे तुम जीतो हारो, वो सेकेंडरी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमने अपनी ड्यूटी करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ऐसे जानवर जो कि ब्राह्मण यज्ञ में पहले इस्तेमाल किए, उनके लिए नेक्स्ट लाइफ जो होती है वो बहुत हायर बर्थ होती थी। और दूसरी चीज, वायलेंस जो है वो कई बार नेसेसरी होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है ये, तो इसमें हम और एलैबोरेट नहीं करेंगे। तो लास्ट पैराग्राफ अब बचा है, कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ? I can read, Prabhuji. हाँ पढ़िए वहां से। There are two kinds of swadharmas, specific duties. As long as one is not liberated, one has to perform the duties of his particular body in accordance with religious principle in order to achieve liberation. When one is liberated, one's swadharma specific duty becomes spiritual and is not in the material bodily concept. In the bodily conception of life, there are specific duties for the Brahmanas and Kshatriya respectively, and such duties are unavoidable. Swadharma is ordained by the Lord, and this will be clarified in the 4th chapter. On the bodily plane, Swadharma is called Varnashrama Dharma, or man's stepping stone for spiritual understanding. Human civilization begins from the stage of Varnashrama Dharma, or specific duties in terms of the specific modes of nature of the body obtained.
Discharging one's specific duty in any field of action in accordance with the orders of higher authorities serves to elevate one to a higher status of life. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो स्वधर्म दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जब तक हम लिबरेटेड स्टेज में नहीं होते, जिसको मतलब ज्यादातर लोग जो हैं इस सोसाइटी में, तब तक हमारे को अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य जो शरीर के साथ संबंधित हैं वो सब फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। रूल्स, रेगुलेशंस, रिलीजियस और सब कर्तव्य अपने निभाने पड़ते हैं। और जब हम ये निभाते रहते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंगली, तो उससे हमें सही मार्ग पे चल के अल्टीमेटली लिबरेशन मिलती है। लिबरेशन मतलब फ्रीडम, मोक्ष, और लिबरेशन में भी हाईएस्ट लिबरेशन जो है वो है गोइंग टू स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, ठीक है ना। और जब कोई लिबरेटेड हो गया है, अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मोक्ष के लिए या लिबरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि मरे पहले ही व्यक्ति, एक जिंदा व्यक्ति भी मोक्ष मिल सकता है, उसको लिबरेटेड हो सकता है। वो उसको कहते हैं जीवन मुक्ता। जीवन मुक्त स उच्यते, वो हाईएस्ट पर्सन है ऐसा व्यक्ति जो जी के भी लिबरेटेड कॉन्शियसनेस। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो जिंदा है और उसके लिए भी लिबरेटेड कॉन्शियसनेस में, उसके लिए क्या है स्वधर्म या स्पेसिफिक ड्यूटी। उसके लिए स्पेसिफिक ड्यूटी, चाहे वो यही चीजें कर रहा है, देखने में वही लगेगा, अरे वो भी कुकिंग कर रहा है, अरे वो भी जो है खाना ले रहा है, लेकिन उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो टोटली स्पिरिचुअल है। तो इसलिए वो अगर बाजार में जा रहा है, सब्जी लेके आ रहा है, कुकिंग कर रहा है, तो वो अलग कॉन्शियसनेस में कर रहा है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी लोग। तो ये फर्क आ जाता है स्पिरिचुअल रेल्म में, लिबरेटेड कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति हैं उसका, और जो मटेरियल लेवल पे या नॉन लिबरेटेड स्टेज में उनका, ठीक है। अब आगे बताया गया, इन द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ देयर इज स्पेसिफिक ड्यूटीज ऑफ द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, सच ड्यूटीज आर अनअवॉइडेबल। तो जो हमारी ड्यूटीज होती हैं एक सोसाइटी में, हम जिस भी स्टेज में हो, वो ड्यूटीज हमारे को निभानी है, वो अनअवॉइडेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम हैं तो क्षत्रिय लेकिन हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये ऐसे नहीं हो सकता। और ये आगे डिटेल में और भी बताएंगे स्वधर्मा। ऑन द बॉडीली प्लेन स्वधर्मा इज कॉल्ड वर्ण आश्रम धर्मा। तो वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमें चलना होता है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। तो आप लोगों ने पहले भी बताया था, कौन बताएगा इस बारी 4 वर्ण कौन से हैं और 4 आश्रम कौन से हैं? किसी की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके ग्रेट। तो निर्मला माता जी ने, किसने बताया ये? निर्मला माता जी ने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, और तो ये तो हो गए 4 वर्ण। और 4 आश्रम कौन से हैं? गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, संन्यास। परफेक्ट। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। परफेक्ट। तो 4 वर्ण हो गए, 4 आश्रम हो गए। तो ये वर्ण और आश्रम में जो जो हमारी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे जैसे शास्त्रों में बताई गई है, वैसे फॉलो करना जो है वो बड़ा लाभदायक है। तो आजकल लोगों को पता ही नहीं होती ड्यूटीज क्या है, और इनफैक्ट लोगों को जो वो कर रहे हैं, जिसकी उनको आदत है, वो सोचते हैं कि यही चीज को जस्टिफाई करना है कैसे सही है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि उनको क्लियर कॉन्सेप्ट लेने के लिए भी उनका माइंडसेट होता नहीं। लेकिन कई लोग क्यूरियस होते हैं, उनको सही में जानकारी हासिल करने की मन होता है, वो पता लगना चाहिए कि क्या सही है, वो सही मायने में अच्छी चीज करना चाहते हैं, सही चीज करना चाहते हैं। आप सो रहे थे ना? तो ऐसे लोग जो हैं, जो सही मायने में सही चीज करना चाहते हैं, वो लोग इसका एडवांटेज उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, और इससे सीख के अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हैं भगवद गीता से। ओके, तो ये श्लोक यहाँ पे खत्म हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है इस श्लोक में से?
कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? 2.31 हमारा खत्म हो गया। हाँ भैया, I had one point here. हाँ जी, When बताइए। they say कि killing of animal, मतलब तो मतलब I don't think it is justified. मतलब at the end of the day, even if it's in Vedas, do we really think that killing of animal and during the puja also was something that was approved? हाँ, तो क्वेश्चन अब ये है कि भाई ये किलिंग ऑफ द वेदस, तो इसलिए मैंने समझाया क्या कि अलग अलग तरीके के वेदों में वर्णन दिए गए हैं। अब कई लोग हैं वो मांस से एडिक्टेड हैं, उनको कोई कीमत पे वो छोड़ेंगे नहीं, तो उनके लिए वेदस बताते हैं कि अच्छा अगर आपको इतना है तो आप ऐसे करके खा सकते हो। लेकिन उन कैटेगरी के लोगों की बात नहीं हो रही अभी। वो लोग तो एकदम सेकेंडरी हो गए कि हाँ भाई ये एक बहुत फ्रैक्शन है। अब दूसरी कैटेगरी आती है जब क्या कहते हैं, पहले के टाइम में जो है कई यज्ञ होते थे जिनके अंदर मंत्रों के उच्चारण से ही जो जानवर है उसको उसकी क्या कहते हैं मृत्यु हो जाती थी, और फिर उसको एक नई बॉडी मिलती थी जो कि और ज्यादा पावरफुल होती थी, और ज्यादा अच्छी होती थी, और वो उसकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में हेल्प करती थी आगे के लिए। तो जिसके लिए बहुत प्यूरिफाइड ब्राह्मण और सही तरीके से करने वाले चाहिए होते, तो वो ऐसे कोई हर किसी को करने की वो नहीं होती। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक सिचुएशन में कई बारी ऐसी चीजें करनी पड़ती थी। तो क्योंकि आप मार नहीं रहे किसी को, आपका मार रहे हो, आप तो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, तो ऐसे जो सैक्रिफाइसेस हैं ये कई बारी नेसेसरी होते थे पहले के टाइम में। कलयुग में ये सब बंद है, तो इसलिए ये जस्टिफाइबल नहीं है। किसी और युग में क्या क्या चीजें होती थी और क्या क्या नहीं, उसके लिए हमारे को डिटेल में समझना पड़ेगा क्या कल्चर था, क्या सिस्टम था, क्या रीजन था, फिर हमें और पता लग सकता है उस बारे में। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्राह्मण है उनको अपने कर्तव्य करने हैं, जो क्षत्रिय है उनको अपने कर्तव्य करने हैं, और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, जो वो करते हैं उससे उनको बेनिफिट मिलता है। समझ में आ गया? हाँ जी, got it. ओके, और किसी को क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? हाँ दो बेटा। अरे रक्षिता माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, सॉरी मेरी बेटी ने अनम्यूट कर। ओके, तो नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं फिर। We'll quickly do the next one. यदृच्छया चोपपन्नम् यद्यच्छोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ सुखिना क्षत्रिया पार्थाः लभन्ते युद्धमिदृशम्। लभन्ते युद्धमीदृशम्। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसकी? Should I read? Yes, हाँ पढ़ो राशिका। Yes. कौन पढ़ेगा? Okay. राशिका पढ़ रही है? कौन? मेरे को आवाज समझ नहीं आ रही। मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़ो राशिका। Okay. O Parth, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. Purport. As supreme teacher of the world, Lord Krishna condemns the attitude of Arjun, who said, I do not find any good in this fighting. It will cause perpetual habitation in hell. Such statements by Arjuna were due to ignorance only. He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. For a Kshatriya to be on the battlefield and to become non-violent is the philosophy of fools. In the Parasara Smriti, or religious codes made by Parasara, the great sage and father of Vyasadeva, it is stated. मैं पढ़ देता हूँ ये। हाँ जी। क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्र पाणि प्रदान दयान
निर्जित्य परसैन्यादि शीतिं धर्मेण पालयेत्। पढ़ो आप नेक्स्ट राशिका। The Kshatriya's duty is to protect the citizen from all kinds of difficulties, and for that reason, he has to apply violence in suitable cases for law and order. Therefore, he has to conquer the soldiers of inimical kings, and thus, with religious principles, he should rule over the world. ओके ग्रेट। तो देखो ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड हिसाब किताब होता था। जो ब्राह्मण है वो सिंपल होते थे, उनको कोई बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं होती थी उनके पास, उनको सिंपल लिविंग चाहिए। अगर डोनेशन आती थी तो वो आगे डोनेट कर देते थे, और उनका कोई चाहिए क्यों नहीं होता था, क्योंकि जो भी उन्हें चाहिए होता है वो राजा को बोलते थे, राजा अरेंज कर देता था। उनकी ड्यूटी है पढ़ाना लिखाना बच्चों को, और साथ में गुरुकुल एस्टैब्लिश करना, यज्ञ करना, सैक्रिफाइस करना, ये सब देखना कि सारा समाज में सब कुछ ठीक चल रहा है। जब उनको लगता था कि कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल है, कोई कुछ है, वो आके आपस में डिस्कस करके किंग को रेकमेंड करते थे कि ये करो भाई। किंग जो होता था वो उनके सबऑर्डिनेशन में रहता था, जो ब्राह्मण कह रहे हैं, और उस हिसाब से चलता था। और जो किंग है उसके पास पावर्स और वो आती थी, क्योंकि वो रेडी होता था अपने आप अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए, बचाने के लिए। वो धर्म कर्म को, एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाता था। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे उसको ध्यान में रखता था। और वो डिक्टेटर नहीं बन सकता क्योंकि उसके ऊपर ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है उनका कोई मतलब कोई निस्वार्थ रूप में उनको करना है। तो स्ट्रक्चर जो था वो इतना अच्छा था जिसके वजह से सब कुछ बैलेंस में रहता। अब जब अनट्रेन्ड लोग आ गए, अनट्रेन्ड लोग डिक्टेटर या राजा बन गए, या अनट्रेन्ड लोग अपने आप को ब्राह्मण कहने लग गए, जो जन्म से ब्राह्मण सोच रहे हैं, ऐसे लोग जब आने लग गए तो फिर वो सोसाइटी के जब ब्राह्मण और क्षत्रिय ठीक से नहीं रहेंगे तो फिर वैश्य और शूद्र तो उनकी तो कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय अच्छे से एडमिनिस्टर करेंगे तो बाकी भी अच्छे से रहेंगे। तो ऐसे बड़ा साइंटिफिक सिस्टम था। और क्षत्रिय जो है उसको अपनी ड्यूटी करनी थी, वो कभी ऐसे कर नहीं सकता कि पीछे हट जाए, और जो बाकी लोग हैं उनको अपनी ड्यूटी करनी थी। अब इस पर्टिकुलर श्लोका में कृष्ण उसको क्या कह रहे हैं, कृष्ण जवाब दे रहे हैं जो अर्जुन ने पॉइंट बोला था। अर्जुन ने कहा था कि मेरे को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा जो जिस वजह से मुझे युद्ध करना चाहिए, कोई ऐसी चीज लग ही नहीं रही, कोई रीजन जिसकी वजह से मुझे युद्ध करना चाहिए। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसको, कृष्णा वो कह रहे हैं कि अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसी अपॉर्चुनिटी तो किसी को मिलती ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के, हेवन के सारे द्वार खोल दिए इसने। तो इसलिए आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, आपके क्षत्रियो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अब स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार लोग कहते हैं अरे स्वर्गवासी, कि स्वर्गवासी हो गए ये पर्टिकुलर, बट स्वर्ग जो है वो बहुत कोई हाई जगह नहीं है। अब नेचुरली अगर आप इस धरती के लोगों से कंपेयर करो तो वो तो बहुत हाई है। इस धरती में तो इतनी मिजरेबल सिचुएशन है, यहाँ पे कोई मिलियनियर और बिलियनियर बनने के लिए इतने फाइट मारने के लिए तुले हुए हैं। तो स्वर्ग में तो कई कई बिलियनियर से भी बहुत ज्यादा ऑपुलेंस होती है, बहुत ज्यादा उनके पास एंजॉय करने के लिए फैसिलिटीज है। मगर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब आपका पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाता है तो आप फिर यहीं पे गिर जाते धरती में। तो इसलिए स्वर्ग जाना इज टेम्परेरी, वो तो टेम्परेरी है। जैसे आपने कोई टिकट परचेज करी फर्स्ट क्लास फ्लाइट की, आपको टिकट दे दी तो आप कुछ घंटे के लिए फर्स्ट क्लास फ्लाइट में बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपको कहे आपने पूरी जिंदगी की सेविंग जो है वो दे दो और हम आपको फर्स्ट क्लास फ्लाइट की टिकट देंगे, तो कोई समझदार व्यक्ति देगा नहीं। वो कहेगा नहीं, मेरे को फर्स्ट क्लास फ्लाइट में क्या करना है जाके, यार कुछ घंटे की बात है, मैं ऐसे नॉर्मल में कर लूंगा या बिना उसके कर लूंगा, मुझे अपनी बाकी लाइफ चलानी है। तो उसी तरह से जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ स्वर्ग में जाने के लिए अपने पुण्य वगैरह अपना टाइम नहीं लगाता, वो सिर्फ
समझदार व्यक्ति इसलिए भी नहीं काम करता कि उसको यहाँ पे बड़ा नेम, फेम, प्रेस्टीज, प्राइड ये सब मिले। समझदार व्यक्ति सोचता है कि कैसे मैं अपनी लाइफ यहाँ पे अच्छे से जीऊं और मेरा फ्यूचर जो है वो भी सेफ रहे, मेरा माइंड पीसफुल रहे, मैं हैप्पी रहूं और मैं दूसरों के लिए अच्छा करूं। ये समझदार व्यक्ति करता है और इस के लिए बेस्ट है भगवत गीता। भगवत गीता हमारे को बताती है कि कैसे हम इस पर्टिकुलर लाइफ में अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं अभी जीने के लिए और फ्यूचर के लिए भी। अपनी कैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसको कई कई जन्मों के लिए बिल्कुल सॉलिडली फिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर हमने स्पिरिचुअल लाइफ करी कुछ टाइम और उसमें हमारे को परफेक्शन नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट बर्थ जो होगी वो और अच्छी होगी, उसमें और ज्यादा हमारे को फैसिलिटीज मिलेंगी, रिसोर्सेज मिलेंगी, अच्छी एसोसिएशन मिलेगी, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जिनके साथ हम एसोसिएट करके भगवत गीता और अच्छे से समझ सकें और एडवांस करें। और अगर बाई चांस हमने सीरियसली अभी लिया और इसको फॉलो किया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम इसी लाइफ में परफेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइफ हमारे को लेने की जरूरत ही नहीं है जिसमें हमारे को फिर से बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज के थ्रू गुजरना पड़े। तो ये सब डिपेंड करता है कि कितनी ईगरली हम डिजायर कर रहे हैं, कितनी हम इच्छा कर रहे हैं कि हमको भगवान के साथ कनेक्ट होना है। जितना हमारे भगवान की तरफ प्रेम बढ़ेगा कि हाँ भाई कृष्णा की तरफ हमारा प्रेम बढ़ेगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि हम वहां जाएंगे। क्योंकि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जब अंत काल, जब मृत्यु का टाइम आता है तो जो भी हम सोचते हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है वैसे हमें बॉडी मिलती है। एग्जाम्पल आती है, दो स्टोरीज आती है। एक स्टोरी आती है अजामिल की। अजामिल ने जीवन भर जो है बहुत ज्यादा एक्चुअली वो ब्राह्मण फैमिली से था और अच्छी उसकी ट्रेनिंग थी शुरू शुरू में, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हुआ वो करप्ट हो गया। उसकी मैरिज हुई थी, सब फैमिली थी, बच्चे और सबका उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसको उसने गलत एसोसिएशन देखी। उसने देखा कि कैसे लो क्लास के व्यक्ति ओपनली क्या कहते हैं शूद्र मेंटालिटी में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो रहे हैं, जो है रिलेशनशिप्स हो रहे हैं बॉय और गर्ल के। तो उसको देख के उसका जो मेंटालिटी थी वो भी ऐसी हो गई करप्ट कि उसने एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया और उसी के साथ रहने लगा, उसी के साथ अपनी पूरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल गया, अपनी वाइफ, चिल्ड्रन सब कुछ कर दिया। तो उसने बहुत गलत काम किया और उसको जाना था नर्क में, उसको बहुत ज्यादा नर्क में पाप भुगतने थे। लेकिन हुआ क्या, उसने अपने एक बेटे का नाम रख दिया था नारायण, और मृत्यु के वक्त उसको नारायण, अपने बेटे को याद कर रहा था लेकिन नारायण शब्द बोल दिया उसने। और उसको ये बेनिफिट मिला कि उसको एक और मौका मिला, उसको एक और मौका मिला जिसमें उसको समझ में आ गया कि अच्छा विष्णुदूत तो आए थे उसको लेने के लिए, सॉरी यमदूत तो आए थे उसको लेने के लिए, लेकिन साथ में विष्णुदूत आए और विष्णुदूत ने कहा नहीं नहीं भाई इसको नहीं आप ले जा सकते, इसने नारायण का नाम बोला। और क्योंकि उसने वो नारायण का नाम बोला था इसलिए उसको मौका मिला। फिर उसको समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, ऐसी गलती कभी नहीं मैं करूंगा। और उसने अपना पूरा अच्छे से अपनी लाइफ को रिलीजियसली परफेक्ट किया और वो फिर परफेक्शन मिल गई उसको। और दूसरा एग्जाम्पल आता है भरत महाराज का। भरत महाराज जो थे उनके नाम पे भारतवर्ष का नाम पड़ा और वो इतने ज्यादा एडवांस थे कि जब वो पूरे राजा एकदम पीक पे थे अपने कैरियर के, तो उन्होंने अपनी स्व इच्छा से सब कुछ रिटायरमेंट लिया। उन्होंने कहा नहीं मेरे को मेडिटेट करना है भगवान के ऊपर। वो चले गए जंगल में और वहां पे एक छोटी सी उन्होंने कुटीर बनाई, वहां पे भगवान के ऊपर मेडिटेट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक हिरन को देखा उन्होंने जो कि नदी के किनारे पानी पी रहे थे उनके साथ, और वो हिरन प्रेग्नेंट थी एक्चुअली। और हिरन का शेर के दहाड़ने की वजह से उसको इतना डर लगा हिरन को कि वो खुद मर गई और उसको वहीं डिलीवर कर दिया उसने। और डिलीवरी के बाद उसकी मृत्यु हो गई और जो बच्चा था वो वहीं पानी में था। तो उसको बचाया बच्चे को और लेके आए अपने उसमें, छोटा न्यू बॉर्न हिरन। न्यू बॉर्न बच्चे कितने डेलिकेट होते हैं, और उसका ध्यान रखा।
लेकिन उस ध्यान रखने में उनसे एक गलती हो गई कि वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भूल गए। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। जब हम एसोसिएशन में रहते हैं तो कोई ना कोई हमें रिमाइंड कराता रहता है कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे करना है, हमें इंस्पिरेशन मिलती रहती है। तो यहाँ भरत महाराज की इंस्पिरेशन और रिमाइंडर खत्म हो गया, और खत्म होने की वजह से क्या हुआ कि मरने के वक्त उनको हिरण का याद आ रहा था, और क्योंकि उन्हें हिरण का याद आ रहा था इसलिए उनका नेक्स्ट लाइफ हिरण का मिला। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली बहुत एडवांस थे, उनको हिरण के शरीर में भी ये याद रहा, कह रहे नहीं मैंने तो बहुत स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करी थी लास्ट टाइम, मेरे को तो भगवान की तरफ बढ़ना था, ये मैं कहाँ फंस गया। तो हिरण के शरीर में जब वो थे तब वो जा जाके ऋषि मुनि के पास जाके वहां पे बैठते रहते थे उनके कुटीर के साथ और सुनते रहते भगवान के बारे में। जब भगवान के बारे में सुनते रहते थे हिरण के शरीर में भी, तो उनको वो चीज याद रही और उनकी कॉन्शियसनेस बड़ी एडवांस थी उसमें भी। तो कई बार जानवर भी जो होते हैं वो भी क्या कहते हैं बेनिफिट मिलता है उनको भी, अगर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए भगवान का मंत्र, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, इसको लाउडली भी चैंट करना होता है। जैसे कई मंत्र आप लाउडली नहीं चैंट कर सकते, वैदिक मंत्र कई सारे हैं जिनको आपको मन में ही चैंट करना है। आप लाउडली चैंट करोगे तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लग जाएंगे आप। तो ये बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं कौन सा कैसे करना है। इसलिए पहले गुरु होता था, उससे जाके सीखते थे लोग। आजकल तो लोग टेप लगा देते हैं, कैसेट लगा देते हैं। हर मंत्र के लिए नहीं वो चलता। हाँ, हरे कृष्णा मंत्र के लिए कर सकते हो आप, क्योंकि इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े मिनिमल है, ना के बराबर। और ये कलयुग के लिए है स्पेसिफिकली, क्योंकि कलयुग में लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र और ऐसे मंत्र का पावर है। तो वो जाके वहां पे सुनते थे हिरण के शरीर में, और नेक्स्ट लाइफ उनको मिली एक बहुत एडवांस डिवोटी की, जड़ भरत महाराज। और फिर वो परफेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि पिछले एक जन्म मैंने गलती करी और मेरे को एक जन्म हिरण का मिल गया, अब मेरे को दोबारा गलती नहीं करनी। तो उस वक्त उन्होंने परफेक्शन ली। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ हमारी चल रही है, ये कई सारे रीजंस की वजह से चलती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान के नाम को मेडिटेट करें, और उसका बेनिफिट बहुत होता है। स्पेशली जैसे जैसे हमारी मृत्यु क्लोज आ रही है, हमें पता नहीं कि कब ऐसा टाइम आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। नो क्वेश्चंस? ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड करेंगे और हम मिलेंगे कल। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की हरे जय। कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय। जय हरे कृष्ण।